All right. Uh, Students, Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। Um, आपको स्लाइड्स ठीक नज़र आ रही हैं? You can see the slides? यस सर। Okay. All right. We continue. Today is our 17th lecture of Internet of Things. As usual, before starting our 17th lecture, I always ask if there is any difficulty from our previous lecture. We can discuss that. Do you have any problems with the contents we have covered up till now? नो सर। Okay. All right. So we just quickly review our slides we covered in lecture 16. Basically, in our last lecture, we had discussed various types of switches. We had discussed what is the purpose of a pull up or pull down resistance, what's the importance of pull up, pull down resistance. We had seen a simple arrangement in which you connect such buttons. We learned about the switches in the last time. So you connect a switch, you sense its pressing, and you blink an LED. And here are the two examples. One is if you use RPI GPIO library, and another one is when you use GPIO 0 library. We discussed this. In this GPIO 0 case, we even used some additional functions other than just pressing and blinking. There were functions that it can take actions by measuring the hold time of press to carry out some actions like toggle. And we also saw that we can have a function called, just by because of that one function call, blink function call, you can define the on time, off time, how many times it blinks, and a background thing, which if set to true, it carries out that action which you do here in the background and comes back immediately if it is set to true. However, if it is set to false, it will complete this job and then come back. So these were the things which we learned. Okay. All right. So today we'll continue with our interfacing of sensors and output devices with the Raspberry Pi. We have done some very basic thing by connecting a simple switch as input device, sensor, sensing, and LED as output device. We drive that by the Raspberry Pi. So one input, one output case, and integration into the Raspberry Pi. We continue with it by for making interfacing with the Raspberry Pi at GPIO port uh, or header. Today, one next thing closest to that is a PIR motion sensor. How to integrate that? What is the purpose of this? First of all, PIR stands for passive infrared sensor. Uh, there could be sensors in which uh, we will see in the next slide, maybe
active sensors which detect the presence of somebody. uh, they transmit some signal, then they receive some signal. And that is kind of active sensors for finding maybe presence or distance or something like that. The passive sensors mean they will just receive some energy, and based on that they will detect the presence, in this case motion. Presence and motion. Moving, somebody who is moving. Yeah, this is a very common thing you need to build as a part of your home security system. Let's say you have a, not during daytime you are using those places and you are moving around, but if there is some, either during daytime, some unattended area, empty room, and you want to know if anybody enters there, or when you at night you go to sleep, you would like to be, if anybody enters into other places which you are not using, you want to get an alarm. So that is a some kind of alarm you can generate based on a motion sensor. So we here we just want to see how to integrate a motion sensor which is passive infrared based. Infrared based, every human body emits some infrared energy. Our heat of our body generates some infrared emission. Okay, so if somebody comes in front of this sensor, that infrared thing which is coming out of our body, it detects that. Now, its principle is that if somebody moves there, there are infrared energy coming out of so many things in a room, and that is like a static threshold of that place. But if somebody moves, it has two halves. This sensor has two halves. So when somebody moves, maybe left half gets another energy and right half gets another energy because of the movement. And the differential of these two energies which it gets uh, creates the signal of motion, that somebody is there and moving. It's only motion sensor. If something is lying and emitting infrared, let's say, so then it will not generate a signal. It is only the movement of an infrared generating thing which will cause the differential between the two halves of its detectors and cause the alarm. So that is the PIR motion sensor. So here you can see that how it looks like. Um, it has these three lines. Uh, of course, these two lines, red and black, they are for the power connection. VCC sometimes we call, for connecting the voltage to this. Um, it has 5 volts. It as required by them. The 5 volts is fed to this, and earth is connected to this, so that activates its circuit. And now whenever it detects a motion, here is the signal line. This yellow line is the signal line. It will generate a change of signal here. Let's say if generally it was 0 and somebody in front of it moves, then that level will become 1. That is a signal we call power points or VCC points, and the signal line. So yellow thing is a signal line which changes when somebody in front of this sensor moves. So that is its arrangement. Here we have connected it.
on a breadboard as you will be connecting and using it in your class projects, individual assignments and projects. And these are the three lines which are not in this dimension. It's not, they are not on the same shorted thing. So these are the 3 points. Each one of them, this vertical, this thing is shorted inside in the breadboard. So you connect this to VCC. Here is this 5 volts pin 2, 5 volts connected there. Here is that ground pin connected here, and here is in our, this is your choice. Where do you want to apply the signal which this sensor generates? This is your choice. Out of GPIO pins, you choose in your design that this GPIO pin I will use for inputting of the signal which comes out of this PIR thing. So your this thing will be configured as in mode. If you are determining the direction in your code. Um, so that is how this will work. So here is the circuit diagram. So maybe sometimes we'll call it schematic or circuit diagram. Both synonymously we will use when you have, this is a connection diagram on the breadboard. How do you connect it? Connection diagram. This is the circuit which you have connected here. So this is the circuit or diagram or schematic. The schematic tells that what is the circuit, how it is connected, uh, in terms of maybe pins and locations and direction of signal and all. So same thing in a circuit diagram. Here is that motion sensor. You can see that this 5 volts, pin 2, not pin 1, it's pin 2. Okay, the pin 2 is connected over here and feeding 5 volts. Okay. The other end of this, which is black, is connected over here to this ground pin 20. So now there were so many ground pins, you decided either use 20 or on the board sometime you have a common ground pin and everything you bring there. Both options are there. So you use this ground pin, this VCC pin, and this as the signal out of this PIR. In physical thing, it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. The physical header pin number is 7, but its functional GPIO number is 4. In this, we are using the, GPIO 0 at the top. I have not shown it here, but you will write it at the top, just like all other places we did. Over here also you will do the same thing. Whenever you are using you from GPIO 0, import the particular thing in this case, right? Okay, and okay. Okay, I just for that we should instead of, okay. So we say that from GPIO 0 import motion sensor. When you use GPIO 0, this library provides a function for each device. In this case, you mention LED, you mention button, you mention motion sensor, and their words of the function and case sensitivity you have to take care of. I was seeing last time कि शायद ये चीज़ आप नहीं, आप जब कोड दिखा रहे थे
प्रीवियस लैब में तो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा हुआ था आपने। तो ये क्योंकि एक फंक्शन है जो इस लाइब्रेरी से के लाइब्रेरी के इस मॉड्यूल से आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो यू हैव टू यूज द स्पेसिफिक फंक्शन नेम विच दैट लाइब्रेरी हैज गिवन. So you say M capital and then motion sensor. Okay, and this is either import time, that will work, but then you may import lot of things with time. So a more efficient way is if you are not using too many things from time, so you use from time import sleep. We are using sleep in this course, so we do that, right? Okay, so we do this. Now this name thing is the device. It says motion sensor GPIO4 will be used for this motion sensor. GPIO4 here, GPIO4, not pin 7. It is based on the GPIO number. So you will use GPIO number 4 for motion sensor signal. It's understood. It is by that function's definition that this you are writing. Although this motion sensor, you have also connected this line, you have also connected this line, but they are just power lines. They are VCC and ground. So they are just power lines. Here you mention the pin where you will take the output of this motion sensor as input to your Raspberry Pi. So GPIO number where this motion sensor will feed the input. Okay, and you give it a name, a variable name, similar, but you can see the difference, underscore and small things somewhere. You could give it a name MS or sensor or whatever. It's your name. Okay, then you say a infinite loop, that a continuously working system all the time looking for any sensor signal. So you should say if motion sensor, which is this your instance, dot, this is a parameter available, attribute in this function. So it says if motion sensor dot motion detected. Motion detected means, is this line where you are sensing the signal, has it become high? So it will check. Motion detected means this line has become high because of some motion in front of it. So if that is motion detected, then you take some action. Normally you carry out some section, you will raise some alarms, you will close some doors, or you will switch on some lights or things like that. So here we say, okay, here are those actions. So presently you were interested only this function of motions, and we said, okay, print detected motion. Here are your actions. For you can sleep for 2 seconds. It will keep this alarms on. Whatever action you took for 2 seconds, the things will continue, and then it will uh, it will go back to this loop, and again it will check motion sensor. So what will happen, you have designed it that if it detects a motion, it will raise some action alarm for 2 seconds, and it will again come to this checking of motion. Let's say if somebody came in, it raised the alarms for 2 seconds, and again checked if there was no motion, which means if somebody entered and just keeps sitting there, it will stop saying that alarm. That is this arrangement, right? You could have other arrangements also, but anyway, this is the arrangement here. You can, while designing some circuit, you can check, you'll move your hand in front of it and you make it static, and you will say that, okay, it has stopped doing that because it does not generate the signal. So you are checking that signal again and again. You could write code here instead of saying sleep 2.
that this continues. This remains in this place constantly. ठीक? Okay. Else, if there was no motion detected, no motion detected, print motion, no motion detected, and sleep too. Okay, okay, simple. Breadboard patching diagram, schematic or circuit diagram, code using GPIO 0 library for detecting just a signal on a motion sensor, PIR motion sensor. Okay. Now we have understood it. We can use it in more useful things. We have another input device, another, uh, in fact, output device. We'll look at the output device. This is a simple buzzer. Here's a buzzer. As I said in the previous case, maybe instead of switching on an LED, you want to switch on a buzzer. If somebody entered in your home and this PIR motion sensor detected, so you want to raise alarms by making some buzzer on and doing the thing. Now, buzzers are of, you should know, are of two types. इस ये जो इंटरफेस जब हम कर रहे हैं इनपुट आउटपुट डोमेन में बड़ा इंटरफेसिंग रिलेटेड एस्पेक्ट को समझना और सीखना बहुत ज़रूरी है. एक DC 5 volts, they are given or specified, let's say 5 volts based buzzer. They are called active buzzer because they have their own internal oscillator. So whenever you apply 5 volts, that oscillator starts running and that oscillator generates the sound and you have the buzzer working. So that is a active buzzer. DC, it works on DC. We also know another type of buzzers which you use in your homes, and they are not active buzzer. They need a constantly varying signal like your AC, and they don't have built in that oscillator. They, let's say they are using your AC signal, and that is causing a relay like operation, that is causing a switch to operate. uh, when you have the input coming, it moves, it connects, and then when it connects, the circuit breaks and it again gets away. मतलब वो आपको इसकी अभी हम डिटेल की बात इतनी नहीं करना चाहते कि आपका जो एक कॉयल से आप ऑपरेट करते हैं जिसमें से सिग्नल गुजरता है, वो आपके इसको ज्वाइन करता है या ट्रैक करके इसको, ये पहले ज्वाइन था, सिग्नल आया, इसके पास गया, आप इसकी आवाज़ जनरेट हुई इसके मूव होने से, जब ये एनर्जाइज हुआ तो ये ब्रेक हो गया और फिर इट गॉट डिस्कनेक्टेड और फिर सिग्नल आया और उसने इसको एनर्जाइज किया, और तो वही चीज़ जो उसको एक दफ़ा कॉइल को करंट देती है, वो फिर जिस चीज़ को पुल करती है, स्विच का ऑपरेशन करती है, वो सिग्नल को ब्रेक कर देता है, और इस तरह फिर वो बारी बारी ब्रेक हुआ, फिर सिग्नल आया, ब्रेक हुआ, और उस तरह. तो उसमें हमें ये घर के जो हम बजर्स आप इस्तेमाल करते हैं उसमें दे आर नॉट एक्टिव बजर, दे डोंट हैव ऑसिलेटर. वो एसी की उसको ही यूज़ करते हैं और मेक ब्रेक करके एक पॉइंट को और बजर एक्शन पैदा करते हैं. हम यहाँ जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये डीसी एक्टिव बजर है, डीसी ऑपरेटेड है. इट हैज़ ऑसिलेटर इनसाइड कि जब आप डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं यहाँ पर, ये ऑसिलेटर का आपका बॉक्स है, ये ऑसिलेटर, इट जनरेट्स दोस
this signal which makes it buzz. So as soon as you connect 5 volts, let's say, to this, the oscillator starts running, and that causes this buzz action, right? So this is the active buzzer. We are using DC based active buzzer, very small size. They could be bigger or smaller in this case. So active buzzer, you apply a DC. Here are the line. You apply the uh, you apply some. Here it is showing that from a output of a GPIO line, you connect this buzzer, and it will, as soon as this line is made active, it will start buzzing. I will show this. Um, Here is the ground line. I will rather mention that instead of this short, we will be having as a for protection maybe a resistor connected here. Its value as to loudness of buzzer, like loudness of LED, brightness of LED, loudness of buzzer. Maybe we'll put 1K and we'll see if the loudness is good enough. It's fine. Otherwise, we have to use a smaller resistor. This resistor is for safety. So you bring the output of GPIO, maybe have this protection resistor. It goes to this buzzer, comes back to the ground, and it buzzes. So only thing which you need is that on this pin, when you want it to buzz, you apply high, which means 3.3 volts comes out of it and it runs it. ये इसकी ब्रेडबोर्ड की वायरिंग डायग्राम है based on the pin numbers of the board. Same thing is shown as a schematic over here. Here is your header, and you are using pin number 11, which is GPIO 17. This line will give the signal for it to buzz. Here is that limiting resistor which I was talking about. It should be connected here, in fact, in between. ये इसको यहाँ से कट कर दें और ये रजिस्टर लगा दें. इसके आगे बजर है और फिर ये वापस ग्राउंड पिन नंबर 6 जो ग्राउंड फंक्शन रखती है उधर कनेक्टेड है. ये चीज़ और ये चीज़ एक है. ये आपका फिजिकल सर्किट है ब्रेड बोर्ड पर पैच होके. ये आपकी सर्किट डायग्राम है जिसमें ये सारे पिन नंबर जीपीआईओ और ये उसके मेंशन है. ओके, इसके लिए अगेन इट्स वेरी सिंपल कोड फ्रॉम GPIO 0 import buzzer. Now these are keywords which have to be used. First B capital and then others are small. So you use this. You must use the exactly the same uh, letters and their size, capital or small. The time. So you again say from my this buzzer function for the activation line of this buzzer, I will use GPIO number 17. Here is a GPIO 17. Here is a GPIO 17, which is at pin 11, but GPIO 17, which I will use to make it buzz. So you write that number. And assign it to your name. It is with small b. It's your choice. You could just give it a word. You could write buzz. You could write b. This your, when you activate this information, you assign it to this instance, to this variable, and then you will use this variable to say buzzer dot on function. Now this buzzer thing function is calling a method dot on. बजर क्लास में मेथड ऑन कॉल किया है उसने. यहाँ से बजर क्लास थी उसको इंस्टेंशिएट किया, उस इंस्टेंस पे मेथड ऑन कॉल किया. For 2 seconds it remains on in this code. You could have time of your choice. Then you say buzzer dot method ऑफ कॉल किया, वो ऑफ हुआ और फिर 2 सेकेंड ऑफ रहा और फिर लूप में आया. तो अगर आप इस कोड को चलाएंगे
और GPIO 17 पर इस तरह ये बजर कनेक्टेड होगा। तो बजर ऑन ऑफ कंटिन्यूसली फॉर 2 सेकेंड्स ऑन 2 सेकेंड्स ऑफ जारी रहेगा। ये आपका कोड है। ओके ओके। फिर और भी इसमें जैसे मैंने बताया, इट प्रोवाइड्स मोर फंक्शंस। ये बेसिक फंक्शन ऑन और ऑफ का है जिसका हमने इस्तेमाल देखा, बट इट हैज़ मैनी अदर फंक्शंस। यू कैन लुक इन दी relevant reference, and like it has also a toggle method. So you can, in this loop you may decide, instead of working on and off, you may decide that buzzer should toggle. Toggle means invert its state. Toggle means invert the state. If it is on, and when this thing runs, it will become off, right? And if it is off, it will become on. Okay? अगर ऑफ है तो ऑन हो जाएगा, ऑन है तो ऑफ हो जाएगा। ये टॉगल है। सो आपने अगर टॉगल यहाँ सिर्फ लिखा तो फिर आपको अलग अलग डॉट ऑन 2 सेकेंड्स डॉट ऑफ 2 सेकेंड्स की जरूरत नहीं है। टॉगल स्लीप टू और सेम एक्टिविटी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा फिर ये जिस तरह पीछे था जब हमने अभी देखा था ऑपरेशन ब्लिंकिंग ऑफ एलईडी, इसी तरह इसमें है। यहाँ ब्लिंक की बजाय ये बजर पिन 17 ट्रू वाइल लूप buzzer dot beep, and it has that how much time you want it to be on, how much time you want it to be off, how many times you want to repeat this activity of on and off, and do you want this process to occupy this, and only after finishing you continue, or do you want that this process should start in the background and it should proceed with the code. So इसके लिए फॉल्स और ट्रू, अभी आपने फॉल्स किया है कि आप कहते हैं कि ये काम पूरा करना है मैंने और फिर आगे चलना है, तो ये आपने 2 to 10 इससे ये काम हो जाएगा। सो ये एक और तरीका है इसमें जो प्रोवाइडेड है। ओके, अब हमने कुछ छोटी छोटी बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सीखी हैं, वेरी बेसिक वन, जिन्हें हम GPIO पिंस ऑफ रास्पबेरी पाई को यूज करके फिजिकली इनपुट आउटपुट की एक्टिविटी कर रहे हैं, इंटरफेसिंग कर रहे हैं रास्पबेरी पाई से, उसी को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। अब हमने ये जो चंद चीज़ें सीखी थी, एक ये PIR मोशन डिटेक्टर सीखा था, एक बजर सीखा है, उससे पहले एक स्विच सीख चुके थे। तो अब हम कहते हैं एक सिंपल अलार्म सिस्टम बनाते हैं। आप अपने घर में, जो मैंने जिक्र इसका जब PIR की बात कर, आप एक इंट्रूडर डिटेक्शन सिस्टम बना रहे हैं अपने घर के लिए, सिंपल सा, कि इफ समबॉडी एट नाइट एंटर्स इनटू योर एम्प्टी rooms, areas, or maybe your lawn or any place, then you should get some alarms raised in terms of a buzzer sounding or things like that. Okay, तो ये उसका एक छोटा सा सिस्टम है। अच्छा, तो इसमें हमने 3 चीज़ें लगाई हैं। ये PIR मोशन सेंसर कनेक्ट किया है, ये बजर अभी जो हमने सीखा था कनेक्ट किया है, एक स्विच भी हमने लगाया है। स्विच क्यों लगाया? स्विच का रोल यहाँ है, यहाँ ये तो आप नहीं चाहते कि आप स्विच प्रेस करें और ये बजर बजे, फिर तो फायदा ही नहीं है आपके ये जो डिटेक्शन सिस्टम या इंट्रूडर डिटेक्शन सिस्टम है, कि अगर आप उठ के स्विच बजर को स्टॉप करने के लिए स्विच लगाया है। बजर को स्टॉप भी नहीं करने के लिए। अच्छा, बजर स्टॉप तो होगा बेस्ड ऑन हमारी जो वो प्रॉपर्टी थी मोशन डिटेक्टर की, कि वो डिफरेंशियल वोल्टेज पे काम कर रहा था, और हर दफ़ा जब आप यहाँ चेक करोगे लूप में तो वो स्टॉप हो जाएगा। अगर वो चोर दाखिल होके बैठ जाए और हिले नहीं अपनी जगह से,
तो इस कोड में जो हमने रखा है वो ये रखा है, तो वो स्टॉप हो जाएगा। वो हमने डिस्कस कर लिया था और यहाँ कोड में भी उसी तरह है। ये है, इसको कहते हैं एक टेक्निकली आमतौर पर टर्म आर्मिंग द स्विच, आर्मिंग द सिस्टम, नॉट द स्विच। यहाँ स्विच का वर्ड ठीक नहीं, आर्मिंग द सिस्टम। जैसे गन में आप होता है कि जब आप उसको आर्म करते हैं और फिर ट्रिगर प्रेस करते हैं तो वो फायर करती है, और अगर आपने आर्म्स को ऑन नहीं किया हुआ है, डिस आर्म उसको रखा हुआ है, तो फिर ट्रिगर प्रेस करने से वो नहीं चलती। इसी तरह सिस्टम जो आप बनाते हैं उसके साथ बात सिस्टम के ओके। और अच्छा, ये सिस्टम को आम करना बाज दफ़ा बहुत ज़रूरी होता है। जैसे इस सिस्टम में आमतौर पे जब कोई आप कोई इंस्टॉल भी करते हैं सिक्योरिटी सिस्टम घर में, तो देखो ये आप चाहते हो कि दिन में आप उन रूम्स में फिर रहे हो खुद, और यू डोंट वांट टू एक्टिवेट द सिस्टम, इट इज़ एक्टिवेशन। आपने एक तरह से सिस्टम को डीएक्टिवेटेड रखा हुआ है, बेशक उसमें पावर सप्लाई कनेक्टेड भी है, डीएक्टिवेटेड रखा हुआ है। तो आपने इस स्विच, एक टॉगल स्विच लगाया होता है। जब आप रात को सोने लगे और आपने कहा नाउ आई वांट दिस सिस्टम टू बी एक्टिवेटेड, तो आप वो स्विच, टॉगल स्विच को वो कर देते हैं। नाउ इट इज कि अब अगर कोई उधर दाखिल होगा, आप भी दाखिल हो गए किसी वजह से, किसी काम से चले गए, तो वो अलार्म रेस कर देगा। तो दिन में आप ये काम नहीं करते, और जब आप स्विच रात को सो रहे हैं उस वक्त आप सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं ताकि फिर कोई उस एरिया में दाखिल हो तो वो, तो इट इज़ लाइक आर्मिंग, आर्मिंग स्विच और एक्टिवेशन, सिस्टम एक्टिवेशन स्विच। ओके, ऑलराइट। चले, तो अब हमने ये तीन चीज़ें लगाई, इनका ये रोल था। यहाँ ये फिजिकली इस तरह कनेक्टेड है, ये तीन लाइंस आपके पीआईआर सेंसर की, जिस तरह मैंने पहले बताई थी, वो कनेक्टेड है। ये आपके वो दो लाइंस आपके बजर की कनेक्टेड हैं, और ये आपके स्विच। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ हमने आपको इस फंक्शन को टेस्ट करने के लिए इधर ये पुश टाइप स्विच दिखाया है, or maybe it could be when you push once it gets latch. Okay, if it is latch type, even this circuit is fine for us. So generally यहाँ पर आप टेस्ट करने के लिए अगर पुश टू ऑन टाइप लगाएंगे तो ड्यूरिंग द प्रेस ऑफ द स्विच आप अपनी ये फंक्शनलिटी चेक कर लेंगे। बेहतर इस ऐसे सिस्टम में हो कि पुश टू लैच टाइप स्विच हो, कि जब आप, मैंने आपको बताया था कि पुश किया तो वो उस पर उसी पर कायम रहा, जैसे टॉगल स्विच होता है कि अब आपका सिस्टम एक्टिवेटेड है, उसे एक्टिवेटेड रहेगा टिल द टाइम सुबह उठ के आप उसको डीएक्टिवेट ना करें। तो इट्स मोर ऑफ अ पुश टू लैच स्विच जो आप इस्तेमाल कर रहे हो यहाँ, प्रैक्टिकली वो होना चाहिए। बट आपको अगर शॉर्ट टाइम की टेस्टिंग करनी है, यू मे यूज पुश टू ऑन टाइप स्विच एंड टेस्ट इट द वर्किंग ऑफ योर सिस्टम। ओके, इसमें मैंने यहाँ सर्किट डायग्राम में जहाँ जहाँ मैं ये लिमिटिंग रेजिस्टर या प्रोटेक्शन रेजिस्टर अपने सर्किट में हम इस्तेमाल करते हैं, वी हैव मेड अ हैबिट ऑफ डूइंग दैट। वो जहाँ जो इस डायग्राम में नहीं बने हुए थे वो मैंने इस तरह शो कर दिए। एक्चुअली इधर इन पैच बोर्ड पे इधर पैच होंगे, मगर मैंने यहाँ शो किए हैं क्योंकि वो मिसिंग थे इसमें। हम हैबिट रखना चाहते हैं कि हम वो प्रोटेक्शन वाली चीज़ों को इस्तेमाल करें। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ सर्किट डायग्राम में रेजिस्टर्स वगैरह शो किए हैं वो मैंने एडिशनली इधर भी दिखा दिए हैं। ऑफ कोर्स ये तीन लाइंस इसकी हैं और ये उसका सेंटर लाइन है जिसमें ये रजिस्टर लगा हुआ है, ये इसकी दो लाइंस हैं जिसकी ये रजिस्टर लगा हुआ है, और ये इस स्विच पर यहाँ से इनपुट आनी चाहिए, यहाँ पर 3.3 वोल्ट्स इस स्विच पर आए, और इसके दूसरे पॉइंट से 10 के एक रजिस्टर से ग्राउंड में चले गए,
और ये दूसरे पॉइंट से 1K रजिस्टर के साथ आपको वो सिग्नल स्विच का आएगा जो आप हाई करके एक्टिवेट कर रहे हो इस चीज़ को। ये पैच बोर्ड की थिंग ब्रेडबोर्ड पे सर्किट की पैचिंग है, और ये सर्किट डायग्राम या स्केमेटिक डायग्राम है। इन दोनों का अपना अपना रोल है, और ये आपको काम करने के लिए उसको लगाना है। या आपका फिजिकल सिस्टम है, ये उसकी अरेंजमेंट है। जैसे आपने यू मस्ट फर्स्ट ड्रॉ दिस इज योर डिजाइन फेज। पहले आप ये सर्किट डायग्राम या स्केमेटिक डायग्राम बनाएंगे, फिर इसके मुताबिक ये ब्रेडबोर्ड पे सर्किट कनेक्ट करेंगे, राइट। दैट इज द प्रॉपर प्रोफेशनल वे ऑफ डूइंग बिल्डिंग सिस्टम्स, राइट। सो ये आपको अच्छी तरह पता हो, इसमें तमाम इंफॉर्मेशन है, ये कंप्लीट है। यहाँ आप अपना डिज़ाइन सोच रहे हो कि मैं कौन सी पिन इस्तेमाल करूँ, क्या रजिस्टर लगाऊँ, करंट क्या फ्लो कर रहा है, कनेक्शन कहाँ लगाने हैं। हेयर इज़ योर टोटल डिज़ाइन, हेयर इज समबॉडी। अभी तो आप खुद भी कर रहे हो, इसे पैच करोगे, मे बी कि आपने यूर डिज़ाइनर, आपने पूरा ये स्केमेटिक डायग्राम बनाया, पूरा डिज़ाइन फाइनलाइज किया, और यू मे गिव इट टू ए टेक्नीशियन who can connect things smartly on a breadboard, and then you can start testing and building software and keep maybe make some changes later on. So first in the diagram and then over here, make it a habit। डायग्राम बनाएं, फिर ये पैच करें। अगर चेंज आपको इधर के प्रॉब्लम से आ रहा है तो फिर पहले डायग्राम में चेंज करें, फिर इधर चेंज करें, ताकि आपकी वो फर्दर कंटिन्यूटी रहे डिबगिंग की। अदरवाइज यू देयर मे बी अ डिस्कनेक्ट हेयर विच कैन कॉज लॉट ऑफ प्रॉब्लम। डायग्राम आपने पहले बनाई इस काम की, क्या डायग्राम बनाई? आप चाहते थे कि एक, पहले तो आपने कहा एक स्विच हो जिसको जब आप ऑन कर दें तो ये आपका सिस्टम एक्टिवेट हो। तो ये स्विच हमने पहले भी जो लगाया था, यहाँ ये पहले पावर के साथ ये स्विच लगाया ताकि आप पुश टू ऑन का वाला काम करें। तो आपने पहली दफ़ा जब पुश किया तो ये जुड़ गया और ये आर्म हो जाएगा या एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरी दफ़ा फिर पुश किया तो ये अलहदा हो गया, तो डीएक्टिवेट या डिस आर्म हो जाएगा। ये ग्राउंड में इस तरह शो करता रहूँगा हर जगह। इस सर्किट डायग्राम में आप शो कर सकते हैं। हमने इससे पहले ये किया कि इस ग्राउंड को पर्टिकुलर ग्राउंड पिन पर ले जाके दिखाया था, वो ज़रूरी नहीं है। आपके किसी भी जगह जहाँ ग्राउंड अवेलेबल है, ये ग्राउंड या ये ग्राउंड, या आपके पैच बोर्ड पे एक लाइन वीसीसी की आप रिजर्व कर देते हैं और एक लाइन ग्राउंड की कर देते हैं, तो आप उस ग्राउंड पे, जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि ये ग्राउंड पे कनेक्ट है, ये लाइन आपकी ग्राउंड थी। सारे ग्राउंड, इसका ग्राउंड, इसका ग्राउंड और इसका ग्राउंड, तीनों के ग्राउंड इस लाइन पर आ गए। तो एक तरीका सर्किट डायग्राम में आप ये, जैसे मैंने पहले ये भी किया था कि इसको उस पिन पे ले जाता था जहाँ से वो सप्लाई ली थी, जैसे यहाँ शो किया है, लेकिन यहाँ शो किया इस पिन पे। और दूसरा तरीका ये है कि आप सप्लाई 3.3 को इस तरह शो कर दें कि यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज है, यहाँ पे अर्थ है, इधर स्विच है, स्विच के बाद यहाँ रजिस्टर है, इनके दरमियान वाले पॉइंट से ये प्रोटेक्शन रजिस्टर के तहत ये इनपुट सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है, हाई या लो। ठीक है, ये पुल डाउन रजिस्टर लगाया है, ये स्विच लगाया है जो अभी हमने सीखे थे। और इस तरह आपने ये आर्मिंग स्विच की अरेंजमेंट GPIO 8 पे कनेक्ट की है कि जब ये आर्म होगा तो ये हाई होगा, और जब ये डिस आर्म होगा तो ये लो होगा। इस स्विच के आर्म होने के बाद आपने कहा कि नाउ इफ समबॉडी enters into that zone, so my PIR motion sensor जो कि यहाँ सप्लाई और इधर ग्राउंड से कनेक्टेड है, उसकी रेड और ब्लैक, उस टाइम में जब somebody is moving in front of this sensor, a high signal it will generate on this yellow line। ये हमारी प्रोटेक्शन रजिस्टर है, और आप अपने सिस्टम में इसको सेंस करेंगे कि इट हैज़ बिकम हाई,
और उस पर आप एक्शन ले सकते हैं। ठीक, हम इस केस में एक्शन क्या ले रहे हैं? वी विल बज स्विच ऑन ए बजर विच विल बी, इस हम कुछ टाइम के लिए बजर ऑन रख रहे हैं। आपका चॉइस है कि आप कितने टाइम के लिए, या कंटिन्यूस, या एलईडी भी ऑन करना है, बजर भी ऑन करना है, और भी कोई एक्शन करने, फोन करना है टू द पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी, तो वो सारे काम आप इसके ऊपर कर सकते हैं। इस केस में हमने खाली एक बजर को ऑन किया फॉर सम टाइम। ये आपका होम सिक्योरिटी के इंट्रूडर डिटेक्शन का एक सिंपल अरेंजमेंट है। ठीक, इसके लिए पिन हमने डिसाइड किया। ये यहाँ सर्किट डायग्राम में आपको ये चीज़ एग्जैक्ट दिखानी है, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगी कोड लिखने में भी, और ये आपको हेल्प करेगी सर्किट को पैच करने में भी। तो दिस इज द डिजाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये हमने आपसे मांगा है, हर प्रोजेक्ट में मांगा है और मांगेंगे, और ये आप पहले बनाएंगे, फिर ये पैच करेंगे। हर दफा जब आप प्रोजेक्ट करोगे, इस दफा पहले प्रोजेक्ट में हमने आपको ये कहा कि ओके हम पैच कर रहे हैं फॉर एक, आप सर्किट डायग्राम देंगे बिफोर द लैब। हो सकता है आपकी सर्किट डायग्राम गलत हो, हम उसको एवेल्युएट करेंगे कि ये रॉन्ग है, लेकिन इस दफ़ा हमने आपको सर्किट सही पैच करके दिया हुआ होगा, और हम बता देंगे कि भाई ये सर्किट है। आपने कोड से हमारे इस बने हुए सर्किट को, विच इज़ अ करेक्ट सर्किट, चेक करके दिखाना है, डेमोस्ट्रेट करना है, और अपनी वाइवा में अंडरस्टैंडिंग शो करनी है। फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड आप पहले हमें ये देंगे, ये डायग्राम, स्कीमेटिक या सर्किट डायग्राम देंगे जो आपको प्रोजेक्ट असाइंड है। हम उस आपकी दी हुई सर्किट डायग्राम के मुताबिक ये पैच कर देंगे आपके लिए। वटेवर, अगर आपने गलत डायग्राम दी है, एज ए डिजाइनर गलत डिजाइन दिया है, तो टेक्नीशियन उसके हिसाब से पैच कर देगा। वी आर द टेक्नीशियन, आप इंजीनियर है, आपने ये डायग्राम दी, वी पैच इट फॉर यू। ओके, अब अगर ये नहीं चलेगी, तो ये पैच, अगर इस डायग्राम के मुताबिक टेक्नीशियन ने पैच किया है, तो उसका कोई कसूर नहीं है। आपने अगर डिज़ाइन में एरर की है, तो अब आप जब कोड लिखोगे और इधर इसकी फंक्शनैलिटी चेक करोगे और वो नहीं मिलेगी, तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिबग कि आपने इधर डिज़ाइन में गलती की थी, या इधर कोडिंग में आप गलती कर रहे हो, एंड द सिस्टम इज एंड नॉट वर्किंग। ये एजम्पशन आप सेफली ले सकते हैं कि जो कुछ आपने यहाँ सर्किट डायग्राम दी है, योर टेक्नीशियन हैज़ कनेक्टेड इट राइटली। तो आपने हर दफ़ा जब काम ना हो रहा हो, तो ये नहीं वरी करना कि यार सर्किट शायद उसने गलत लगा दिया। सर्किट विल बी चेक्ड एंड काउंटर चेक्ड, या आपने इधर गलत किया है, या आप इधर गलत कर रहे हो, और उसको आप डायरेक्टली एक्सेस आपको इसकी मिली होगी, और आप डिबग करोगे। आप देखोगे अब ये स्विच ऑन किया है, और अब ये एलईडी ऑन हुआ, बजर बजा, जो भी है, ये आप डायरेक्टली चेक करोगे। ठीक है, ओके। इस अरेंजमेंट के लिए ये हमारा कोड है। GPIO 0 लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें आपने इन 3 चीज़ों को इस्तेमाल करना है। हर एक का अपना स्पेसिफिक वर्ड है जो यू हैव टू यूज एज ए कीवर्ड एग्जैक्टली लाइक दिस। इस केस में आपकी मर्जी का दखल नहीं है, ये लाइब्रेरी बनाने वाले की मर्जी का दखल है। सो यू हैव टू नो दैट और चेक इट इन द रेफरेंस डाटा। मोशन सेंसर, बजर, बटन, ये 3 आपने फंक्शन इंपोर्ट किए। ये टाइम से स्लीप को इंपोर्ट किया। अब आपने ये तय किया कि मैं किस किस पिन पर सिग्नल, नॉट द सप्लाईज, किस किस पिन पे सिग्नल इस्तेमाल करूंगा। आपने डिसाइड किया, या आपको असाइन किया गया था कि बजर जो है वो GPIO 17 पे कनेक्ट करो। ठीक, तो आपने ये डायग्राम आपने दी हमें कि GPIO 17 पर ये बजर लगेगा इस तरह, ये लिमिटिंग रजिस्टर से जाएगा और ये इस पे कनेक्ट होगा। ये डायग्राम है, इसका मतलब ये है कि जब सिग्नल यहाँ हाई होगा या इसको एक्टिवेट होगा, तो ये बजर बजेगा। जब इसको डीएक्टिवेट करेंगे तो बंद हो जाएगा। फिर आपने कहा मोशन सेंसर 4,
अब मोशन सेंसर के 3 पॉइंट्स थे, बट 4 इज दैट लाइन जहां से सिग्नल जनरेट होता है। ये 2 पावर सप्लाई और ग्राउंड को लगे हुए हैं, इससे हमें ये दे। फिर 4 में आप ये डायग्राम में बता रहे हो कि 4 पर इसकी सिग्नल, ट्रिगर सिग्नल जो इधर से आएगा वो इधर से 4 पे कनेक्ट, ये 4 आपने लिखा है। फिर आपने बटन को कहा कि वो 8 पे कनेक्ट होगा। तो ये जो बटन की एक्शन है, बटन का भी जो सिग्नल एक्शन है, एक तो बटन सप्लाई पे लगा हुआ है, एक ये लिमिटिंग रजिस्टर, पुल डाउन रजिस्टर ग्राउंड से कनेक्टेड है, ये आपस में कनेक्टेड है। इनके जो सेंटर पॉइंट से ये जो एक प्रोटेक्शन रजिस्टर के थ्रू पिन है, वो हमने कहा आपसे, या हमने कहा या आपने चूज किया डिपेंडिंग ऑन डिजाइनर का, तो ये 8 है। तो यहाँ पे आपने ये डिक्लेयर, तीनों बातें कहनी होती हैं लाइक डिक्लेरेशन, कि मैं बजर के एक्टिवेशन के लाइन पे 17 यूज करूंगा जीपीआईओ का। ये जीपीआईओ नंबर है, नॉट द फिजिकल हेडर नंबर। मोशन सेंसर के सिग्नल पर 4 जीपीआईओ 4 इस्तेमाल करूंगा, और बटन के एक्टिवेशन लेवल को लेने के लिए जीपीआईओ 8 इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पर हमने ये बात कही है, इन बातों को इन वेरिएबल्स पे डाला, ये आपके हैं। इसमें आपने बजर, इसमें आपने मोशन सेंसर, और इसमें देखिए इस दफ़ा बटन की बजाय आपने चूज किया कि स्विच का नाम इस्तेमाल कर लें। पहले पीछे आपने बटन इस्तेमाल किया था। दिस नेम एंड दिस नेम डजंट हैव टू बी सेम, तो ये डिफरेंस आपको नजर आ रहा है कि आपने कहा स्विच। ओके, ये वाला स्टेटमेंट, ये आर्मिंग स्विच, ये आगे कमेंट है, ये आपका लूप है। अगर स्विच इज प्रेस्ड, कि स्विच की इनपुट, स्विच से इनपुट जो आती है वो अगर हाई हो जाती है, ये इस प्रेस्ड इज ए मेथड जो आप कॉल कर रहे हो। अगर प्रेस्ड है तो मोशन सेंसर और स्विच अगर प्रेस्ड है, यानी सिस्टम आर्म किया हुआ था, आपने रात को सोते वक्त आर्म किया हुआ था, तो ये हर वक्त ये चीज अवेलेबल है ऑन। अब ये हो रहा है, अगर मोशन सेंसर विल डिटेक्ट मोशन, यानी मोशन, कोई इंट्रूडर दाखिल हुआ और उसका जब लेवल हाई हुआ मोशन सेंसर का, इस जगह ये उसने जब ये डिटेक्ट किया, तो ये बजर का मेथड कॉल हो गया, बजर डॉट बीप, 0.5 टाइम्स ऑन, 0.5 सेकेंड ऑफ, एंड नन का मतलब है कंटिन्यू, कंटिन्यू, ये इसके ऊपर कंटिन्यू रहेगा ये बजर के साथ। ये वो वाला ऑप्शन है कि आपने ये नहीं रखा कि ये जो है ये ऑफ हो जाए, ठीक, ये कंटिन्यू रहता है। नन का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स ये काम करेगा, ये जारी रहेगा, ठीक है। प्रिंट आपने कहा इंट्रूडर अलर्ट और स्लीप 1 फॉर 1 सेकेंड। जब आप इस चीज से बाहर निकल के आए तो फिर ये 1 सेकेंड के लिए ये प्रिंट हुआ, ये 1 सेकेंड हुआ। दूसरा केस, अगर मोशन सेंसर जब डिटेक्ट नहीं करता तो एल्स वाला आ जाता है कि आपका बजर ऑफ। अगर अगर मोशन सेंसर की ये वो बजर आपका बज रहा है, मोशन सेंसर ने यहाँ पर अगर जब डिटेक्ट नहीं किया तो बजर को ऑफ किया, प्रिंट किया क्वाइट स्लीप फॉर 1 सेकेंड। तो ये आपने दोनों कामों को इस्तेमाल कर लिया, स्विच की आर्मिंग और मोशन सेंसर की एक्टिवेशन पे बेस करके आपका ये रूप चल रहा है। अगर ये अपने आपने जब सुबह को अपने सिस्टम को डिसआर्म कर देते हैं या डिसेबल कर देते हैं, तो वो ये है, इफ स्विच इज प्रेस्ड, कि मॉर्निंग में नहीं है, एल्स स्विच इज नॉट प्रेस्ड। अब ये सारे इंट्रूडर दाखिल हो, मोशन पैदा हो, बजर, ये सब कुछ इट विल नॉट वर्क। बजर ऑफ मोड में ही रहेगा और ये स्लीप 1 टाइम इसके किया इसने, और फिर ये इधर आ जाएगा, फिर ये देखेगा स्विच इज ऑफ, फिर ये बजर ऑफ और स्लीप। ओके, ये हमारा सिंपल अलार्म सिस्टम बाय यूजिंग सिंपल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एट द रास्पबेरी पाई। ऑलराइट, अच्छा, इसी को थोड़ा सा और एनहांस कर लेते हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करने से अपनी दोस्ती पैदा कर रहे हैं, क्योंकि एक
मेजर काम आपका आईओटी में इंटरफेसिंग द आउटसाइड वर्ल्ड का है। हम तो अभी हमने आहिस्ता आहिस्ता उनको ग्रो करा रहे हैं, हाउ टू कनेक्ट मोर एंड मोर डिवाइसेस। ये हमारे इस पार्ट ऑफ कोर्स का इस हिस्से में हम ये वाला पार्ट कर रहे हैं अभी। ठीक, आगे हम फिर इसको वेब से कनेक्ट करना और उससे इन चीज़ों को कंट्रोल करने का काम शुरू करेंगे। ठीक, ओके। अब एक और चीज़ हम सीखना चाहते हैं, डिस्टेंस सेंसर। मोशन सेंसर एक प्रेजेंस को बताता है और मूवमेंट को होता है, बट मोशन सेंसर डज नॉट प्रोवाइड हाउ फॉर समथिंग इज, कितने डिस्टेंस पे है। ठीक, अगर हमें डिस्टेंस का भी डाटा चाहिए फॉर मैनी थिंग्स, आपने अपने कहीं ये चीज़ बॉर्डर पर, लाइन पर, किसी एरिया में लगाई हुई है, तो आपको एक लेट्स से अलार्म रेज हुआ, समबॉडी इंट्रूड्स, बट आपका वहाँ काम अलार्म से नहीं है, आपने देखना है कि किस जगह से, किस प्लेस पर, मेरे इस पॉइंट से कितनी दूर वो जगह है जहाँ पर ये एंटर है, और अब क्या आहिस्ता आहिस्ता वो मूव करके आगे आता जा रहा है, तो कितना करीब है। यानी आपको डिस्टेंस इंफॉर्मेशन का भी ज़रूरत पड़ती है, तो आप डिस्टेंस सेंसर इस्तेमाल करते हैं। डिस्टेंस सेंसर का वर्किंग प्रिंसिपल इज़ वेरी सिमिलर टू दी रडार थिंग्स जो हम देखते हैं। एनिमी एयरक्राफ्ट आपके बॉर्डर में दाखिल होते हैं तो हम कहते हैं रडार ने डिटेक्ट किया। वो रडार के ही प्रिंसिपल पर आपका है। हर चीज़, तमाम ऐसी चीज़ें जो ये देखती हैं वो इसी प्रिंसिपल पर है। फ़र्क ये है कि वहाँ पर आप माइक्रोवेव एनर्जी से ये काम कर रहे होते हैं, वेरी हाई पावर माइक्रोवेव एनर्जी, और यहाँ आप some simpler options like ultrasound, ट्रांसमिशन रिसेप्शन से कर रहे होते हैं, या आईआर ट्रांसमिशन रिसेप्शन से कर रहे होते हैं। लो पावर स्मॉल थिंग्स हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, मगर प्रिंसिपल वही है। प्रिंसिपल इज़ वेरी सिमिलर। वो क्या है कि हम कह रहे हैं कि ये आप रडार, ये आपका रडार है। ठीक, ऐसे रडार्स बहुत सारे ऑल अलोंग द बॉर्डर लगे हुए होते हैं, और ये आपका बॉर्डर है। जब इधर से एनिमी एयरक्राफ्ट आएगा और लेट्स से जब इस जगह दाखिल होता है, तो आपको एक तो वो रडार रोटेट हो रहा होता है, तो उसको पता चल जाता है कि किस एंगल पर आया है या नहीं, किस जगह से आया है, और फिर कितने फासले पर है। तो अभी हम फासले वाली बात कर रहे हैं। स्टैटिक एक ही सिमत में अगर देख रहा है रडार, तो वो इस पर सिग्नल, माइक्रोवेव सिग्नल फेंकता है, जो इसकी बॉडी से रिफ्लेक्ट होके आपको वापस आता है, और आप इस सिग्नल के ट्रेवल टाइम से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वो ट्रेवल किया है, तो टू वे ट्रेवल टाइम को से ऑफ कोर्स उसको हाफ करते हैं, और उस हाफ टाइम में से गैप निकाल लेते हैं। आप कहते हैं कि हमें फिजिक्स से फॉर्मूला मालूम है, एस इज इक्वल टू वी टी, हम करते रहे हैं। द डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो ये टाइम, इसमें आप ये जब ये भेजते हैं पल्स, या आप कहते हो कि ट्रिगर किया आपने, पल्स का ट्रिगर हुआ, फिर जब वापस आता है उधर से रिफ्लेक्शन, उसको आप इको कहते हैं। ठीक, तो ट्रिगर के जाने, ट्रिगर के होने और इको के आने में जो टाइम है, वो टू वे टाइम है। उसको आप हाफ करते हैं तो वो ये टाइम निकलता है। ठीक है, ये वाले टाइम को, इस टाइम को जो टू वे टाइम है, इसको हाफ करेंगे तो ये टाइम ऑफ ट्रेवल इन वन साइड निकलेगा। उसको आप वेलोसिटी, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की सी होती है, 3 × 10⁸ और समथिंग लाइक दैट, जो भी है, इससे करते हैं तो आपको ये डिस्टेंस मिलेगा। ये हमारे रडार प्रिंसिपल पर है। जैसे आप एयरक्राफ्ट डिटेक्ट, बिल्कुल असूल वाइज यही चीज आप यहाँ लगा रहे हो।
ठीक है। इसके अंदर माइक्रोवेव हाई पावर ट्रांसमिशन रिसेप्शन वगैरह की सुपर डुपर चीज नहीं है। इट्स ए वेरी लो कॉस्ट सम अल्ट्रासाउंड ट्रांसमिशन रिसेप्शन और आईआर ट्रांसमिशन रिसेप्शन, दैट काइंड ऑफ थिंग। मगर बात वही है कि ये ट्रिगर, इस पे इसी तरह ये ट्रिगर है जैसे हमने वहां कहा था ट्रिगर, ये किसी चीज से जाके हिट करेगा, वहां से वापस आएगा, इसको हम इको कहते हैं, ये इको। तो इस डिवाइस के ऊपर अब आप देखेंगे 4 लाइंस हैं। ये मैंने यहाँ तो डायग्राम फिजिकल चीज की बना दी, एक्चुअली ये आपकी डिवाइस है जिसके ऊपर 4 लाइन है। एक पे लिखा हुआ है VCC, जो हमारे वोल्टेज आपने इसको देना है, लेट्स से 5 वोल्ट। एक पे लिखा हुआ है ग्राउंड, जहां पर आपने ग्राउंड कनेक्ट करनी है। ये वो 2 पॉइंट्स हैं जो मैंने दिखाया। ट्रिगर की लाइन है जो इधर से ट्रिगर भेजेगी, और ये इको की लाइन है जो उधर से जब रिस्पॉन्स आएगा तो वो इसमें आएगी। तो ये है जिसके जरिए से आप ये डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। तो मैंने जैसे एक्सप्लेन कर दिया कि इस डिस्टेंस की रैशनल, यानी अब इस डिवाइस जो आपकी है इसकी और ये जो इंट्रूडर है या कोई और भी चीज़, एनीथिंग, कार और एनीथिंग विच हैज़ एंटर्ड इंस्टेड ऑफ एयरक्राफ्ट, आपके केस में सम मे बी इंट्रूडर हैज़ एंटर्ड और आप उससे देख रहे हैं। तो ये वो डिस्टेंस है जिसको आपने देखना है कि हाउ फॉर इज द इंट्रूडर इनटू योर एरिया। और इसका जैसे मैंने बताया कैलकुलेशन ये है, इसके अंदर आपको टाइम ऑफ इको माइनस टाइम ऑफ ट्रिगर, किस टाइम ट्रिगर हुआ किस टाइम, इन दोनों को फर्क किया, डिफरेंस लिया, उसको डिवाइडेड बाय 2 किया, तो ये 1 साइड के ट्रेवल का टाइम आ गया। इस टाइम को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया, उस चीज की जो भी सिग्नल है उस सिग्नल की वेलोसिटी जो इस केस में है, इस केस में अगर अल्ट्रासाउंड है तो इसकी वेलोसिटी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली नहीं होगी, और इससे एस आप कैलकुलेट कर लेते हैं। ये है इस डिवाइस का जो हम एक और एडिशनल डिवाइस देख रहे हैं। अच्छा, ये फिजिकली ये डिवाइस लगी है, उसकी लाइंस हैं और उसके आगे कनेक्शन है, और उसके किस मैंने यहाँ लिख दिया GPIO का 17, GPIO का 18, GPIO का 7, अर्थ, ठीक है। ये रजिस्टर्स की वैल्यूज यहाँ मैंने लिख दी हैं। ये हालांकि आप ये बैंड से पढ़ सकते हो वैल्यू, लेकिन जो लोगों को मालूम नहीं है तो उसके हिसाब से हमने ये रजिस्टर की वैल्यूज लिख दी हैं जो आपने यहाँ इस्तेमाल की हैं। ये इसकी 4 लाइंस हैं जो यहाँ पे ये शॉर्ट हुए हैं ये इंटरनली, ये इस तरह के बोर्ड के हेडर से कनेक्टेड है। ये 5 वोल्ट्स की पिन है, ये वाली, ये पिन कनेक्टेड है, और इस तरह ये डिवाइस इस पर कनेक्ट है। ये आपका ब्रेड बोर्ड पर सर्किट है। आपको इसके बनाने के लिए हमें ये चीज देनी है, हमने ये पैच करना है। तो ये चीज में आप बता रहे हो पूरी सारी बात, इस ये कंप्लीट चीज है। ये कह रहे हो मोशन सेंसर हैज 4 पिंस, उनके ये फंक्शंस हैं। ये V वोल्टेज VCC, आप इसके केस में अगर VCC वर्ड लिखा है तो VCC आप कह सकते हो, VCC। ये उसका ग्राउंड, ये आप कहोगे यहाँ मिसिंग थे, मैं ये बता रहा हूँ, ये इंफॉर्मेशन इसमें चाहिए, इसके फंक्शंस को आपको क्लैरिफाई करना है। और ये इसका इको वाला पॉइंट, इको पिन, ये इसका ट्रिगर। अच्छा, अब ट्रिगर जो है आपका ये वो है, ये आपका रडार यूनिट है। आपका रास्पबेरी पाई ट्रिगर जनरेट करेगा। तो दिस पिन विल बी रास्पबेरी पाईज आउट। जब आप अगर इसको इन या आउट के लिहाज से कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो ये आपके रास्पबेरी पाई की आउट कॉन्फ़िगर्ड लाइन है, विच विल प्रोवाइड ट्रिगर टू दिस मोशन सेंसर। ये मोशन सेंसर ये वेव निकालेगा, हिट करेगा, वापस लाएगा, और ये इको का आपको प्रोवाइड कर देगा। ओके, अच्छा, फिर हमने इसका जो इको है, अब आपने इको भी सेंस करना है, इसने तो इको का सिग्नल जनरेट करना है, इस डिस्टेंस पे बेस करके इको का सिग्नल जनरेट करना है। आपने देखना है कि मेरे ट्रिगर के जनरेट करने के कितनी देर के बाद इको आया। तो आपने ये इको लाइन पे ये वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क लगाया है, 330 470 ऑलमोस्ट
जो लेवल इधर से आ रहा था उसको ये प्रोटेक्शन के लिहाज से वोल्टेज डिवाइडिंग नेटवर्क लगाया, उसको थोड़ा रिड्यूस करके और आपने GPIO 18 पे फीड किया। एक्चुअल पिन नंबर इज 12 ये, मगर GPIO 18 पर आपने इसको फीड किया। तो अब आपका क्या हुआ, ये आपका रास्पबेरी पाई था, इसने अपने प्रोग्राम में किसी एक टाइम एक ट्रिगर जनरेट किया, इसको हाई किया, और उसके बाद इसने इस लाइन पर सेंस किया इनपुट कि ये कब हाई हुआ। इस हाई करने और इसके हाई होने के दरमियान जो टाइम है वो टू वे टाइम ऑफ द थिंग है, जिससे फिर आपने कैलकुलेट करके डिस्टेंस निकालना है। ये आपके सर्किट डायग्राम है जो आपने देनी है। ये पैच है जो हम आपके लिए पैच कर रहे हैं, और ये वो कोड है जिसको फिर आपने चेक करना है, ये वो है। ठीक, तो इस तरह फ्रॉम GPIO 0 इंपोर्ट, ये फिर इसके कीवर्ड है, ये आपको पता होंगे, डिस्टेंस विद D कैपिटल एंड S कैपिटल, डिस्टेंस सेंसर स्लीप। अब ये क्या कोड इसका है, ये GPIO 0 बेस्ड है। आपका वेरिएबल डिस्टेंस सेंसर इज इक्वल टू डिस्टेंस सेंसर इन ब्रैकेट पहला पैरामीटर इको कहाँ पर लेनी है। तो आपने कहा GPIO 18 पर इको लेनी है। ये देखिए यहाँ ये GPIO 18 है, हमने जो इको आपके इसकी निकल रही है वो इस वोल्टेज डिवाइडर के बाद इधर अप्लाई की है। तो ये आपने यहाँ कहा कि इको के लिए रिसीव करने के लिए मैं पिन 18 GPIO 18 इस्तेमाल करूँगा। ट्रिगर बाहर भेजने के लिए अपने इससे, जो उसके लिए इन है इसके लिए आउट है, तो ट्रिगर आप ये जनरेट करोगे 17 पे। ठीक है, तो ये इसको हम बल्कि एज फार एज दिस इज कंसर्न, हमारा रास्पबेरी पाई ट्रिगर विल बी जनरेटेड बाय इट। ओके, तो रास्पबेरी पाई के रेफरेंस से ट्रिगर इज आउट। ठीक, और रास्पबेरी पाई के एंगल से इको इज इन। ठीक, वो पहले डिवाइस के हिसाब से लिखे थे, मगर हम रास्पबेरी पाई के एंगल से लिख रहे हैं। तो ये ट्रिगर आउट करेगा पिन 17 पे, ये इसने प्लान बताया है, जैसे हम कहते थे ना LED नंबर किस पर, तो 17 पे इसने ट्रिगर आउट करना है और 18 पर इसने इको को सेंस करना है। ये प्लान आपका हो गया। अब ये आपका कोड आ गया, while true print distance sensor dot distance into 100। ठीक, अच्छा, ये आपका थिंग, ये जो अभी डिवाइस है, ठीक, ये अभी आपको जो ये डिस्टेंस सेंसर जो आउटपुट दे रहा है, जो एज ए पैरामीटर ये इसमें जो प्रोवाइड कर रहा है डिस्टेंस सेंसर, इस मेथड के जरिए इट इज 100th टाइम ऑफ द डिस्टेंस, जो इसने कंप्यूटेशन करके जो डिस्टेंस जनरेट किया है वो ये है। तो ये आपने मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया उसको, डिस्टेंस को, स्लीप, और फिर ये करते गए। अच्छा, ये अब एक और आपने नेक्स्ट पार्ट में, ये तो पिछला ही है। ओके, स्विच, ओके, और यहाँ आपने वो, अब इस नेक्स्ट में आप एनहांस कर रहे हैं अपनी चीज को। यहाँ
बाय कि अब एलईडी डिस्टेंस सेंसर मोशन सेंसर के अलावा अब एलईडी भी आप ऑन करना चाहते हैं। अब इसमें आपने ये एडिशन किया है, ठीक है। अभी पीछे आपने सिर्फ देखा डिस्टेंस सेंसर का एक्शन, अब आप डिस्टेंस सेंसर और मोशन सेंसर को इंटीग्रेट करके एलईडी पर उसको शो करना है। अब उसी को हम थोड़ा सा एक लेवल और आगे ले जा रहे हैं। डिस्टेंस सेंसर, मोशन सेंसर, एलईडी, स्लीप, ये प्रीवियस ही रहा, आपने तय किए वही पिन्स हैं। मोशन सेंसर के लिए जो अब यहाँ पर ये ऐड किया, इसके लिए आपने 4 तय की, एलईडी के लिए 21 तय की। अब ये दो चीज़ें आप इसके साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो अब आपने कहा अगर मोशन सेंसर, ये जो मोशन सेंसर वाला मोशन डिटेक्ट करता है, तो फिर आप ब्लिंक करें। डिस्टेंस सेंसर से जो डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन आ रही है उसको आप ब्लिंक टाइम में कर लें। यानी ब्लिंकिंग का रेट अब आप चाहते हैं कि जितना डिस्टेंस कम होता जा रहा है उसके हिसाब से आपका ब्लिंकिंग का टाइम, यानी जब वो डिस्टेंस कम हो रहा है तो ब्लिंक का गैप कम होता जाए, यानी एलईडी विल स्टार्ट ब्लिंकिंग फास्टर एंड फास्टर, ठीक। तो आपने ये डिस्टेंस सेंसर के डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो ब्लिंक टाइम में दी, और फिर एलईडी का वो जो ब्लिंक फंक्शन जो हमने पीछे सीखा था एलईडी डॉट ब्लिंक, उसमें आपने ब्लिंक टाइम फॉर ऑन, ब्लिंक टाइम फॉर ऑफ एंड कंटिन्यूस ब्लिंक, और ट्रू ये कि इट शुड कम बैक, वो जो है बैकग्राउंड प्रोसेस के तौर पे चले। तो ये एलईडी को ब्लिंक ऑन और ऑफ आपने करना है, और फिर ये आप ये प्रोसेस जब आप ये मोशन सेंसर वाले से इस काम का ये पूरा हो जाए तो फिर आपने लूप को दोबारा रिपीट करने से पहले स्लीप 2 करके रिपीट करना है। तो अब हमने उसी के अंदर ये तीनों को अब इंटीग्रेट कर दिया, और उसमें अब ये किया है कि अगर आपको इफ यू डिटेक्ट somebody moving around into your zone, then you want to blink an LED depending on how close that thing is coming. Like जैसे हमारे एयरक्राफ्ट वाले केस में जो हमने ऊपर किया था, जब वो थोड़े एंटर हुआ है बॉर्डर से तो सम काइंड ऑफ साउंड या एक्शन या वो हो, और एज इट कीप्स अराइविंग क्लोज टू योर टारगेट, your area target, that sounding of alarm or blinking of LED or things should become louder and louder or something like that to create that seriousness of the situation. Same is this, अगर आपके कोई फॉर एंड पे एंटर हुआ और अब वो आपके बिल्कुल हाउस के करीब आता जा रहा है, तो आप चाहोगे कि आपका कोई अलार्म सिस्टम अगर है और कोई सायरन साउंड कर रहा है तो इट शुड साउंड लाउडर एंड लाउडर, और द लाइट्स विल फ्लिकर एट मच फास्टर रेट सो दैट इफ यू आर स्लीपिंग यू गेट अप। ओके, तो ये हमने इन सब चीज़ों को इंटीग्रेट कर लिया। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज़ हम इसमें और ऐड कर देते हैं। हमारे पास ओके, ये स्मॉल थिंग है। ये यहाँ पर तो ये कोड हमने दिखाया एक मोर्स कोड वेदर डाटा के तौर पे, यानी आपको कोई आपने रीड किया एक डाटा वेबसाइट से, और अब हम ये डाटा अभी तक तो एलईडी ऑन, बजर ऑन कर रहे थे। अब उस डाटा को आप एज ए मैसेज अगर भेजें तो उसके लिए मैसेज को पुराने ज़माने में जो मोर्स कोड था वो है, मॉडर्न टाइम में आप अल्फ़ाबेटिक शक्ल में कर सकते हैं, या आप इस मैसेज को अगर अल्फ़ा न्यूमेरिक डिस्प्ले पे दिखाना चाहते हैं तो फिर इसमें इस तरह की एडिट चीज़ हो जाएगी। मसलन इसमें दो तरह की चीज़ें, एक डैश और डॉट है, ठीक है।
तो आप एलईडी पर ये दिखाना चाहते हैं मैसेज कि भाई ये जो इंफॉर्मेशन है वो डैश है, कितने डैश और कितने डॉट हैं वो बता रहे होते हैं। जैसे 10 का पैटर्न है, इसी तरह ये है यहाँ पर। इसकी जगह आप अगर लेट से अल्फा न्यूमेरिक डिस्प्ले लगाते हैं तो आपको क्या चीज़ें ऑन करनी है। अगर आप एक एलईडी पे वो इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसके पैटर्न को 1 0 0 1 0 शो करना है तो कैसे दिखाएंगे। वही चीज़ यहाँ डैश डॉट में शो की है। डैश इज ए लॉन्गर ड्यूरेशन थिंग, डॉट इज ए शॉर्टर ड्यूरेशन थिंग। तो अगर आपने मैसेज पे भेजना है कि ए, ठीक है, तो उनकी पैटर्न फिक्स्ड हैं, लिस्टेड हैं। जैसे आस्की की फिक्स है, इसी तरह ये मोर्स कोड की फिक्स है कि आपका जनाब ये एक डॉट ओके। अगर मैसेज यहां आपने ऊपर तय कर दिया, आपने कह दिया ये एलईडी को किया, फिर आपने कहा डॉट की ड्यूरेशन जो है वो 0.3 है, डैश की ड्यूरेशन जो है वो डॉट से 3 टाइम्स ज्यादा है, यार 0.9 हो गई। और दो वर्ड्स के दरमियान जो स्पेस है वो आपने कहा वो डॉट से 7 टाइम्स है, राइट। ये 0.3 था तो ये हो गया 2.1। तो ये तीन चीज़ें हैं जो आपके किसी भी मैसेज को भेजने के लिए एज ए वर्ड्स यूज होती हैं। उसकी ये आपने टेबल बनाई हुई है, जैसे हम आस्की में टेबल बनाते थे वो इसमें बनाते हैं, मोर्स कोड में आप बना सकते हो। या हमने देखा है कि ये वो जो आपका डायरेक्टरी वाला ऑप्शन था ये वो उसने इस्तेमाल किया है, ठीक। तो ए के लिए ये पैटर्न है, डैश डॉट डैश। डी के लिए डैश डॉट डॉट। जी के लिए डैश डैश डॉट। जैसे 1 1 0 होते हैं, इस तरह ये समझ लीजिए ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इतनी ड्यूरेशन के ये चीज़ें। जे के लिए ये। तो किसी भी मैसेज के लेटर के अगेंस्ट ये पैटर्न आप भेजेंगे। अगर आपका ये एलईडी है, इस पे आपने ये कहना है डॉट डैश डैश डैश, तो ये पहले ये एलईडी 0.3 सेकेंड के लिए ऑन होगा, फिर ये 0.9 ऑफ हो जाएगा, फिर 0.9 के लिए ऑन होगा, फिर 0.9 के लिए ऑन होगा, फिर 0.9 के लिए ऑन होगा। तो आपके एलईडी पर ये पूरा पैटर्न आपने सीक्वेंस में शो कर दिया कि इट इज जे। तो हम अल्फाबेट के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं उनको इस ड्यूरेशन के जरिए से सिंगल एलईडी पर आप हम दिखा रहे हैं ये बात। इसका खाली मकसद ये है कि एलईडी कैन कन्वे इन एनकोडेड फॉर्म लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। यही पैटर्न मैं आपको दूंगा प्रोजेक्ट में। तो मैं आपसे कहूंगा कि एक अल्फा न्यूमेरिक डिस्प्ले है और उस पर आप मैसेज डिस्प्ले करें, आप ए फिर डी फिर जी। तो आप ए के अगेंस्ट यहाँ एक कोड डालेंगे जो वहां पर जैसे 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है इस तरह अल्फा न्यूमेरिक डिस्प्ले में होगा। आप यहाँ वो पैटर्न करेंगे तो ए ऑन हो जाएगा। फिर आप एम शो करना चाहते हैं तो वो पैटर्न एलईडीज की ऑन करेंगे तो एम ऑन हो जाएगा। तो यू विल बी printing, displaying a message on a alphanumeric display by using this thing। इसी को आप अडेप्ट करके वो कोड लिख सकते हैं और वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने सिंगल एलईडी के अलावा मल्टीपल एलईडी बेस्ड मैसेज को शो करने का तरीका भी देख लिया है, और दैट विल बी अवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट, आपका जो नेक्स्ट असाइनमेंट होगी। अभी आपने पहले का डिजाइन सबमिट कर देना है टू लैब इंजीनियर, और फिर आपने अगली लैब में ये जो हमारा लास्ट लैब थी जिसमें आपको वो दिया गया था उसको आपने कंप्लीट बाय 3 मेथड्स जो हमने से कहे थे उस पे वर्क करके और डेमोस्ट्रेट करने हैं। वो आप पहले से बिल्ड किया हुआ हो और आप डेमोस्ट्रेट करो या उस क्लास के दौरान आप करो। तो आपका टास्क ये है कि आपने अभी प्रोजेक्ट 1 की वर्किंग को डेमोस्ट्रेट करना है इस लैब में जो आपकी वेंसडे को है। थर्सडे की लैब के लिए आपको ये वाला प्रोजेक्ट हम दे देंगे, इसकी डिटेल प्रोवाइड कर देंगे कि आपने किस तरह मैसेज को डिस्प्ले करना है ऑन ए अल्फा न्यूमेरिक डिस्प्ले।
सर प्लीज बता देंगे कि प्रोजेक्ट 1 क्या है सर, ये मैंने मिस कर दिया शायद। अच्छा, प्रोजेक्ट 1 विद ऑल द डिटेल्स आपकी लैब के उस पर पड़ा हुआ है। अगरचे हमने क्लास में भी आपको वो कहा था, बताया था, तो क्लास के उसमें भी आप देख लो, यूट्यूब पे अपलोडेड। और उसके बाद लैब में रिटर्न में प्रोजेक्ट 1 लैब इंजीनियर ने अपलोड किया हुआ है, ठीक है। और वो बेसिकली जब लास्ट टाइम आप शायद मिसिंग होंगे, सर वो एलईडी ऑन करने वाला सर? जी एलईडी ऑन करने वाला, जिसमें दो हैं चीजें। एक सिंगल एलईडी ऑन ब्लिंक करने का है, स्विच ऑपरेटेड। एक आरजीबी एलईडी स्विच ऑपरेटेड। और ये चीज आपने तीनों मेथड से, जीपीआईओ 0, आरपीआई डॉट बोर्ड, आरपीआई डॉट बीसीएम, इन 3 तरीकों से ये 2 टास्क आपने उनके आपने उसकी सर्किट डायग्राम पहले से भेजनी है। और प्रोजेक्ट वाले डे आपने इसको डेमोस्ट्रेट करना, ओके। और सर ओके सर। नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो आपको असाइन उससे पहले मैं कर दूंगा, लैब के उस पर आप देख लीजिएगा, उस पर आपने काम किया हुआ हो। और आप उस दिन जब अपना डेमोस्ट्रेट कर लो, तो जो अगला प्रोजेक्ट है उसके उस पर काम कर सकते हो आप। और फिर उसकी डेमो नेक्स्ट लैब में होगी, लेकिन उस पर काम आफ्टर डेमोस्ट्रेटिंग योर दिस प्रोजेक्ट यू कैन start doing the work on your next project to be displayed next time as a thing. उसका डिज़ाइन भी आप हमें सबमिट करेंगे, और ज़ाहिर कोड भी सबमिट करेंगे और डेमोस्ट्रेट करेंगे। इस तरह हमारा सीक्वेंस ऑफ प्रोजेक्ट्स चलेगा, ओके। एनी सर क्वेश्चन? जी सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर वो मुझे अपने डेमो से रिलेटेड बात करनी थी। लास्ट लैब में मैंने असाइनमेंट 3 का डेमो दिया है, पर उसमें मेरे एक थोड़ा सा एक एरर आ रहा था। मतलब डेमो पूरा मैंने ठीक दिया था, पर ये था कि मैंने उसमें कुछ चीज़ें जो थी वो नमपाई में नहीं किया हुआ था। तो एक क्वेश्चन जो था ना वो मैंने नमपाई में नहीं किया था, पर अब मैंने उसको कंप्लीट कर लिया। तो अगर सर मेरा अभी वो हो सकता है तो दोबारा डेमो ले सकते हैं उसका, अच्छा उसी का, अच्छा, चलें सिर्फ एक क्वेश्चन का। चलें उसके बारे में ओके, हम ले लेंगे इसको दोबारा। मगर आई थिंक आप सबने ही वो ठीक नहीं किया। जो नम पाई की स्ट्रेंथ यूज करनी थी, नन ऑफ यू हैव यूज्ड इट। और मैनी पीपल वर सेइंग कि सर हम तो ये कर रहे हैं पिछले कई साल से इस पे काम, तो जल्दी करें और कोई मुश्किल चीज़ दें हमें। और मैंने एम्फेसाइज किया कंपेरेटिव एनालिसिस का, उसमें डाला कि कंपेयर का फ़ायदा क्या हुआ। इज इट मोर concise way of describing your thing or it is as bad as that? मैंने कमेंट्स भी डाले थे, आप सब ने जस्ट लाइक लिस्ट 8-8 10-10 लूप्स डाल के उसको लिख दिया, जबकि numpy was much more powerful. It could write the same code in a much more concise way. None of you have done it. What I will do is कि आप अभी चांस इस तरह देते हैं, आपने अभी वो लिख लिया है तो यू आर एज गुड और बैड एज एवरीबॉडी एल्स। कीप इट विद यू। मे बी मैं इन जी माई सर। नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस इट्स सोल्यूशन। अच्छा, आपने पहला नमपाई का बिल्कुल ही नहीं किया। चलें आप नमपाई का अभी डेमो कर लें, योर कोड उसको आप कर लें, ठीक है। मैं ये ओके, इस हम देखो ये सबके लिए है, सबके लिए। जी सर। आप सर फिर सर मेरा डेमो कब लेंगे? अच्छा, हसीब विल इन्फॉर्म यू। अच्छा, जी मगर सर। मेरी बात सुन लीजिए आप सब लोग। हमने बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन के लिए फर्स्ट टाइम कर रहे थे और आप लोग ओरिएंटेटेड नहीं थे और बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन थे। तो जब हमने पिछले कोर्स किए तो वी kept गिविंग यू चांस ऑफ योर प्रोजेक्ट 1 टिल द फाइनल थिंग। प्लीज ये इसको जो ये ओके जो भी है अभी हम ये शुरू में आपको ये अलाउ कर रहे हैं, ये वन टाइम टाइप है, ये हसीब आपसे कर लेगा।
or to be uniform, everybody will have that chance. हसीब will tell you कि भाई आप सब ने जिसने नमपाई में नहीं किया था या ऐसा कुछ है तो वो एक दफ़ा उसको डेमोस्ट्रेट कर दें, बट कंसिडर इट लास्ट टाइम. हम इस सेमेस्टर में वो वाली चीज़ें नहीं करेंगे, तो आपको सीरियस होना पड़ेगा, रेगुलर होना पड़ेगा. इन टाइम जब आपकी जो डे और सबमिशन है आप उसको पूरा करेंगे, उसका आपको क्रेडिट मिलके वो क्लोज हो जाएगा. उसके बाद हम ये कर रहे हैं आपकी सहूलत के लिए कि हम अब सॉल्यूशन अपलोड कर देते हैं. इनफैक्ट ये अगर नमपाई का अगर उसने अभी सॉल्यूशन अपलोड नहीं किया है तो शायद ये चांस इस दफ़ा इस्तेमाल कर लेंगे आपके लिए. अगर सॉल्यूशन अपलोड हो गया है तो कोई चांस नहीं है. इफ़ ही हैज़ अपलोडेड द सॉल्यूशन तो देयर इज़ नो चांस. लेकिन एनीवे जिस चीज़ अभी इसका अगर सॉल्यूशन अपलोड नहीं हुआ है तो सब लोगों को नमपाई का एक चांस मिलेगा. अगर थर्ड का सॉल्यूशन अपलोड नहीं हुआ, आप थर्ड की बात कर रहे हैं तो मोस्ट जी प्रॉब्ली सर, थर्ड का भी थर्ड सॉल्यूशन, असाइनमेंट. थर्ड का अपलोड नहीं हुआ है अभी सॉल्यूशन. हम सॉल्यूशन अपलोड कर रहे हैं ना. जी सर, अभी अभी नहीं हुआ, थर्ड का नहीं नहीं किया हुआ. हमने. ओके, थर्ड का हसीब, थर्ड का आप सबको जी एक जी, चांस जिन्होंने नहीं दिखा सके एक दे दीजिए. लेकिन अब ये ठीक है. समझ लें कि हसीब विल बी डूइंग, ही हैज बीन टोल्ड कि आपके प्रोजेक्ट की डेमो के बाद ही विल सेम इवनिंग ही विल अपलोड द सॉल्यूशन. और वंस ही अपलोड्स द सर मार्क्स भी फिर अपलोड कर दिया करें साथ ही, हर असाइनमेंट के साथ, सॉल्यूशन के साथ. अच्छा, हसीबा आपने 1 और 2 के किए हैं? जी सर, 1 के किए हैं, 2 हाँ 1 के किए, 2 2 के का नहीं नहीं है. किया. ओके 2 का और 3 का नहीं हुआ. ओके ओके. तो हम अब सॉल्यूशन भी और मार्क्स भी जी सर. सेम डे अपलोड कर देंगे. फिर आपके पास कोई चांस उसको रिपीट का नहीं है क्योंकि हमने तो सॉल्यूशन ही दे दिया आपको. तो फिर आप हम जी सर. कैसे कहे कि यार आपको सॉल्यूशन दे दिया, अब आपसे कहें या आप इसको लिख के ले आओ. तो अब ये बात क्योंकि रेगुलर होगी इसलिए अपनी चीज़ें आप इन टाइम ही रखिएगा. और फिर देर विल बी नो चांस कि जी अब ओके मैं पिछला कर देता हूँ या उसको रिपीट कर देता हूँ, वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी. इस दफ़ा अभी थर्ड का सॉल्यूशन अपलोड नहीं हुआ है. everybody gets a chance for the third assignment, or of course we'll also upload the marks for. All right. ओके सर. जी सर. थैंक यू सर. Okay. Allah Hafiz. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz. सर जिनका डेमो हो चुका है वो ले सकते हैं, मतलब कि जिन लोगों के पूरे डेमो हो चुके हैं उन्हें रहने देते हैं, उन्हें जी. रहने देते हैं सही. क्योंकि वो एनीवे जो डेमो है वो गलत है. आप लोगों ने जी. उसको अटेम्प्ट ही सही नहीं किया, आपने डिज़ाइन पार्ट ही सही नहीं दिया है. तो डेमो को रिपीट करने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा. मैं आपको जी. उसका जो है कि जो नमपाई से हम आपको चाह रहे थे कि आप कुछ उससे कंसाइजनेस हासिल करें, वो आप लोगों ने हाँ जी. सीखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं. आप आंखें बंद करके सी कोड लिखे चले जा रहे हो. आपको बता रहे हैं कि और ये नमपाई इसलिए ज़रूरी है कि अब आगे जो आपके सारी चीज़ें आएंगी उसमें हैक्टिकली यूज़ होगा. हमने इस पे इसलिए टाइम खर्च किया है. तो प्लीज़ मैं आपको वो नेक्स्ट क्लास में जो होगी उसका सॉल्यूशन अभी आप ले लें. ये हसीब आप कब लेंगे? ये हसीब सर वो सर मौजूद है नहीं ही है नहीं. सर. हैं हसीब? सर मीटिंग में सिर्फ हम 3 लोग हैं. अच्छा, वो शायद अभी छोड़ गए हैं. अभी वो बोले जी थे सर. हसीब वॉज देयर क्योंकि अब टाइम जी. क्लास का हो गया. तो ओके जी. हसीब टेल कि वो आपको ये इमीडिएटली ये ले लेंगे. फिर उसके बाद मैं आपको उसका सॉल्यूशन कि भाई हम क्या चाह रहे थे नमपाई से और आपने उसको किस तरह मिसट्रीट किया है वो किसी नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा. ओके जी सर. सही है. ऑलराइट. जी सर. ओके तो ओके. हसीब थैंक यू सो मच सर. ओके वेलकम. ठीक है. सर अल्लाह अल्लाह हाफिज. हाफिज. अल्लाह हाफिज़.